Welcome students. This is the next video segment in chapter 10, class 8, reaching the age of adolescence. Up to the next video we have read about or we have studied about this sex determination in humans, how the sex of a 2B baby is determined. This was yesterday's session. You must have learned it, but today we are going to have a new topic, which is hormones other than sex organs. This is 10.7 and we are going to discuss about this chapter or this point. So first of all we must understand or we must remember, you must have remembering that there are this is the body section. We have discussed testes and ovary. This one is present in males and this one is for the females. These both are ductless glands. Both are ductless glands and they are also called as endocrine glands. Other than these glands, we also have some other glands which produce hormones. These are pancreas. The next one is adrenal, thyroid, and this is the position of pituitary gland. I have also said that pituitary gland is also called as the master gland because it does controls nearly every hormones or nearly everything in our body. This is the gland responsible for every activity that occurs inside our body. So we are going to discuss about the hormones or the glands other than ovary and testes which are inside us. So apart from pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in body such as thyroid, pancreas and adrenal. Now, pancreas and adrenal, we will discuss about it. Now thyroid, this is the thyroid gland. This is present here in our larynx or you can say in our neck. This is thyroid and they produce thyroxine. Okay, they produce the hormone named thyroxine. Because of the less production of thyroxine, the next bit swollen up. जो गर्दन है वो उसमें सूजन आ जाता है क्योंकि थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और उस वाले डिजीज को कहा जाता है गॉइटर, हिंदी में घेंगा कहा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग गॉइटर. ठीक है. अब इस गॉइटर में पहला तो केस था कि आखिर में ये नेक स्वेल क्यों होता है, नेक में स्वेलिंग क्यों होती है. तो जब लेस प्रोडक्शन होता है ऑफ थायरॉक्सिन फ्रॉम थायराइड तो द थायराइड ग्लैंड स्टार्ट्स टू स्वेल अप इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर थायरॉक्सिन. क्योंकि ज्यादा थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसलिए शरीर क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को, थायराइड ग्लैंड को बढ़ाना शुरू करता है ताकि वो थायरॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस कर सके और इस कारण से जो गला है वो स्वेल अप हो जाता है. नाउ देयर आर सम अदर ग्लैंड्स, वन ऑफ देम इज एड्रेनल. एड्रेनल कहां प्रेजेंट है आप देख रहे हैं, इट इज प्रेजेंट हियर. एड्रेनल ग्लैंड जस्ट अबव आवर किडनीज. दे प्रोड्यूस एड्रेनलिन हार्मोन. दे प्रोड्यूस adrenaline hormone. These hormones are responsible for what you can say extra concentration. Extra concentration means, for example, if you suddenly have an accident or if you suddenly meet an accident or witness an accident, you will see a sudden rise in your blood pressure, a sudden rise in your breathing. यानी अगर अचानक आप किसी
घटना को देख ले जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, तो क्या होता है, अचानक से आपके हाथ पांव थोड़े कांपने लगते हैं, आपका ब्रीथिंग, सांस लेने की जो स्थिति है वो बढ़ जाती है, और आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट ज्यादा हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनलिन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनलिन हार्मोन का जब निकलना शुरू हो जाता है एड्रेनल ग्लैंड से, तब ये कंडीशन हमारे शरीर में होता है। तो ये करता क्यों है भाई, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर टेकिंग इवेसिव एक्शन। ये आपके शरीर को तैयार करता है ताकि आप कोई त्वरित एक्शन, कोई जल्दी से एक्शन ले सके, ताकि आपका शरीर अपने आप को सुरक्षित कर सके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एड्रेनलिन। इट आल्सो एडजस्ट टू स्ट्रेस। जब कोई बहुत ज्यादा नाराज होता है तो आप देखते होंगे कि उसका शरीर कांपने लगता है, वो तमतमा जाता है, लाल हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। सभी का गुस्से के प्रति, नाराजगी के प्रति अलग अलग रिएक्शन होता है। कुछ लोग जब ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं तो वो लाल हो जाते हैं, उनका चेहरा लाल हो जाता है। तो ये सारा क्या है, शरीर अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन, किसी खराब सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा है, और उस दौरान एड्रेनलिन का प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा थायराइड एंड एड्रिनल सीक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी। ओके, पिट्यूटरी से ही इनको ऑर्डर मिलता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन। बट पिट्यूटरी आल्सो सीक्रेट्स अ ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी में एक ग्रोथ हार्मोन भी प्रोडक्शन होता है, जो कि किसी भी इंसान के नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो these are some of the hormones which produce in our human body other than the sex hormones. Sex hormones are the testosterone and estrogen. Now, the role of hormones in completing the life history of insects. तो अगर आप लाइफ साइकिल पे जाएंगे ऑफ एन इंसेक्ट, तो आपने एक पहले भी पढ़ा है चैप्टर क्लास 6 या 7 में आपने पहले भी पढ़ा होगा, द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्कवर्म। द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्कवर्म में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉथ और द सिल्कवर्म से जो सिल्क का जो मॉथ होता है वो क्या करता है? इट लेज एग्स, then the caterpillar comes out of it, then it grows a cocoon and traps itself inside it, then the cocoon bursts and an adult moth comes out of it, and this whole process goes on. Now what is this process, or how is this process related to hormones? Now the caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. In tadpole, the same conditions happen. Tadpole, the frogs, the small frogs are the hatchlings from the eggs of the frog are called as tadpoles. आपने देखा होगा पानी में कभी कहीं बारिश का पानी जमा हुआ है तो आप पाएंगे कि उन पानियों में छोटे छोटे काले काले कीड़े घूम रहे हैं। तो वो हमेशा क्या होते हैं? मछली नहीं होता, वो मच्छर के भी हो सकते हैं और मेढक के भी हो सकते हैं। Those tadpoles can be of either of fish or of mosquito or of frog. Now this frog, the chain from larva to adult is called as metamorphosis, and this metamorphosis is controlled by insect hormone. तो ये जो मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस क्या है? फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। लार्वा से वो क्या हुआ? ककून में चेंज हुआ या अपने चारों तरफ ककून बदला, उसके बाद वो उस ककून से जब निकलता है तो एडल्ट में चेंज हो जाता है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस एंड इज कंट्रोल्ड बाय एन इंसेक्ट हार्मोन। इन द फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन।
The process of metamorphosis is controlled by thyroxine in case of a frog. मेंढक में थायरॉक्सिन उसको कंट्रोल करता है, किसको? टेडपोल को एडल्ट फ्रॉग में चेंज बोलेंगे। तो थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। आयोडीन की जरूरत पड़ती है पानी में ताकि वो फ्रॉग जो है टेडपोल से एडल्ट बन सके। आपके शरीर में भी, ठीक है ना, आपके शरीर में भी यदि प्रॉपर मात्रा में आयोडीन का इंटेक नहीं होता है, then your thyroid will not produce thyroxine। इसलिए आपने नमक वगैरह में देखा होगा contains iodine लिखा हुआ रहता है, contains iodine। तो iodine is not a micronutrient, it is a micronutrient but is not found in every food that we intake। माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हर फूड जो हम खाते हैं उसमें मौजूद नहीं होता है। इसलिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए वैसे फूड्स की जरूरत पड़ती है जिसमें आयोडीन हो। बेसिकली जो ओशन, समुद्री जो जीव होते हैं या जो समुद्री भोजन होता है उसमें आयोडीन की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन सभी लोग भारत में ऐसे हैं कि समुद्री चीजें नहीं खा सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है आयोडीन युक्त भोजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए आयोडीन क्या किया जाता है, नमक में मिला दिया जाता है, क्योंकि नमक जो है वो हर इंसान को जरूरी पड़ता है। नमक चाहे कितना भी गरीब हो या कितना भी अमीर हो, सभी को उसका यूज करते हैं, इसलिए आयोडीन को नमक में ही मिला दिया जाता है और इस कारण से नमक लेने से हमारे आयोडीन की जरूरत पूरी हो जाती है। Now next is reproductive health. Reproductive health means the condition of the body when a person or a body is very capable of having reproduction or capable to reproduce. So the physical and mental well-being of an individual regarding an individual health, to keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet. भोजन सही होना चाहिए। What is balanced diet? Balanced diet is a kind that contains every nutrient that we require in the amount that the body need। मतलब बैलेंस डाइट एक ऐसे कॉम्पोजिशन ऑफ फूड है, फूड का एक ऐसा कॉम्पोजिशन है जिसमें हर न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर के द्वारा जरूरी पड़ता है वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट उसमें सही मात्रा में मौजूद हो। Now, the person also must observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise। अपने शरीर को साफ सुथरा रखना और एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। During adolescence, however, these become even more essential। एडोलेसेंस के पीरियड में क्योंकि शरीर बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत तेजी से डेवलप करता है, मेंटल और फिजिकल चेंजेस बहुत रैपिडली आते हैं, इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी दैट a person must have balanced diet during the adolescence, because it will, in the absence of balanced diet, this will affect their mental and physical health both। Now, nutritional needs of adolescents। So everyone needs a balanced diet, but adolescent needs their diet to be planned very carefully। So balanced diet तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि what it has। Balanced diet means that the meals include protein, carbohydrate, fat and vitamins in the requisite proportion। यानी वैसा डाइट जिसमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में उपलब्ध हो। और इंडियन मील जो हम भारतीय खाना खाते हैं, जनरली रोटी, चावल, दाल खाते हैं और सब्जियां खाते हैं, उसमें अधिकतर में ये बैलेंस डाइट ही है। Milk is a balanced food in itself. Fruits also provide nourishment for infants. Mother milk provides all the nourishment that they need। ऐसे दूध को तो कहा ही जाता है कि बैलेंस डाइट है, बैलेंस फूड है। कुछ चीजों की कमी लेकिन वो भी पूरी नहीं कर सकता है। फ्रूट से हमें विटामिन्स मिलता है, बहुत सारी चीजें और भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। डिपेंड करता है कि किस तरह का फ्रूट हम खा रहे हैं। और किसी नए जन्मे
इन्फेंट के लिए माँ का दूध ही उनको जरूरी सारे पोषक तत्व दे देता है। Now comes iron. Iron gives blood and iron-rich foods such as leafy vegetable, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry are good for adolescents. तो यहाँ पर आयरन की कमी बहुत सारे एडल्ट्स में हो जाती है, जिसके कारण वीकनेस और शरीर का सही तरीके से निर्माण न होना, ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो क्या क्या चीजें, पत्तियों वाली सब्जियां, गुड़, मीट, खट्टे फल, आंवला, ये सभी जनरली जिसमें खट्टापन है, साइट्रस फ्रूट्स वो भी रिच होते हैं विटामिन सी के साथ। So these are some of the photographs of the food that we utilize or that we should utilize. यहाँ पर कुछ चीजों के लिए मना किया गया है, ठीक है। Check item for lunch and dinner in your meal. It is the meal balanced and nutritious. Does it include cereal which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide ये basically आपका खाने के बारे में बता रहा है कि what food should you have and what does it provide you with. इसमें फैट और शुगर भी होना चाहिए, क्योंकि शुगर आपको टूटकर शुगर जो है डिकम्पोज होने के बाद ग्लूकोज में चेंज होता है, जो कि आपको एनर्जी देता है। Now comes chips and fat content snacks, though very tasty, should never replace regular meals. क्योंकि ये चिप्स जो हैं वो अच्छे तो लगते हैं, बाकी जो है डब्बे वाले खाने वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी अपने सामान्य खाने से बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है। इनफैक्ट कुछ मामलों में उनमें फैट या सैचुरेटेड जो होता है फैटी एसिड, उनकी मात्रा ज्यादा होती है, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए we must avoid eating the packed food, ठीक है। पैक्ड फूड खाने से हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ जंक फूड्स आर the food which are packed, which also they can also include the food which we find at in the hotels like samosa and aloo chops. Other than that, the chowmein or the pasta that we eat on a very regular basis that we get from the Chinese stalls, these are all included in junk food. So we must avoid these foods because they contain excessive amount of fat which are not good for our body. Next comes personal hygiene. Personal hygiene means अपनी स्वच्छता। तो सभी को कम से कम एक बार नहाना चाहिए, ये बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारतीय घरों में हर रोज प्रैक्टिस किया जाता है। साथ ही साथ इसकी जरूरत टीनेजर्स में ज्यादा पड़ती है, क्योंकि उस समय स्वेट ग्लैंड्स का एक्टिविटी जो हमने शुरू में पढ़ा था, जो पसीने की ग्रंथियां हैं उनका एक्टिविटी बढ़ जाता है। इसके कारण से शरीर गंद भी मारने लगता है, इसलिए हर रोज तो नहाना चाहिए। शरीर के हर हिस्से को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। अगर साफ सुथरा नहीं किया गया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद है फिजिकल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में आप सभी कोई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। क्या क्या चीजें, क्या फायदे हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप थोड़ा देर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर का सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, आपके शरीर में कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट है या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज होता है ताकि चर्बी न जमा हो सके। उसके अलावा और क्या होता है, आपका शरीर का हर हिस्सा जो है वो ठीक तरीके से काम करने लगता है, बीमारियां दूर रहती है, इम्यून बढ़ता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिसके कारण आपके शरीर में ताजगी और स्फूर्ति आती है। सो देयर आर various advantages of having exercise. So we must have exercise, we must play games, but outdoor games. आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो आप दौड़ते थे, घूमते थे, इधर उधर मैदान में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका शरीर कभी भी अस्वस्थ नहीं होगा।
आप कभी भी जनरली बीमार नहीं पड़ते हैं, शरीर बहुत ही स्वस्थ सामान्य दिखाई देता रहता है। लेकिन आप जब अपने बड़ों को देखेंगे जो काम करना शुरू कर दिए हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो टेबल वर्क करने लगे हैं वो लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज से दूरी बना लेते हैं या उनके पास समय नहीं मिलता है। तो आप देखते ही होंगे कि शरीर में किस तरह का बदलाव आ जाता है, शरीर अस्वस्थ रहने लगता है, मोटापा बढ़ जाता है ना, वो थक बहुत जल्दी जाते हैं। तो these are some of the conditions that a body can get to if it does not have proper exercise. उसके बाद है say no to drugs. ये myths, taboos, do's and don'ts, मतलब myth क्या है, taboos क्या है, ये सब जो पारंपरिक मान्यताएं हैं कुछ ऐसी हैं जो बिना मतलब के मानी जाती है, ठीक है। उसमें जैसे मान लीजिए एक बिल्ली आपके सामने से गुजर गई तो वो क्या है कि नहीं जाना चाहिए, उससे वो गलत सिंबल, गलत संकेत दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हीं चीजों को हम मिथ्स कहते हैं या टैबूज कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं कि क्या क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। बहुत सारी गलत भ्रांतियां हैं हमारे यहाँ, जैसे कि शरीर के बदलाव के बारे में तो कुछ ज्यादा ही है। अब क्या क्या है, कुछ दिया हुआ है कि अगर कोई लड़की के दौरान, लड़कों को मेंस्ट्रुएशन के दौरान देख लेती है तो प्रेग्नेंट हो जाती है, गलत है। मदर इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का लिंग क्या होगा उसके लिए मां जिम्मेवार है, जो कि हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। वैसा कुछ भी नहीं होता। A girl should be not be allowed to work in the kitchen during menstruation. लड़कियों को किचन में काम करने की इजाजत नहीं होती है menstrual period के दौरान। ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है, मिथक है और इससे परहेज करना चाहिए। उसके बाद है से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स को मना करना चाहिए, ड्रग्स से दूरी बनानी चाहिए। ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स एक्चुअली में एक ऐसे केमिकल है जो आपको शरीर को थोड़ी देर के लिए राहत देते हैं, लेकिन वो शरीर की आदत में परिवर्तित हो जाते हैं और जब वो आप शरीर को प्रोवाइड नहीं करते हैं तब आपका शरीर टेंट्रम से गुजरता है, वो बहुत सारी गलत चीजों को आपसे करवा देता है। तो जब आपका शरीर बड़ा हो रहा है, एडोलेसेंट पीरियड में आप जा रहे हैं, तो उस समय शरीर और माइंड में का एक्टिविटी तेज हो जाना ये बहुत ही सामान्य है। इसीलिए कभी भी कंफ्यूजन या असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको कहता है कि ऐसे समय में आपको ड्रग्स लेने से शांति महसूस होगी, तो सीधे उसे मना कर देना चाहिए जब तक कि डॉक्टर आपको उसके लिए सलाह न दे। ड्रग्स केमिकल होते हैं, फिर से कह रहे हैं, ड्रग्स केमिकल्स होते हैं जो आपको शरीर को मोमेंटरीली रिलीव करते हैं, लेकिन वो उसे डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं लेकिन मेडिसिन के तौर पे, और उस मेडिसिन को अगर आप यूज कर लेते हैं शरीर को एक परमानेंट शांति देने के लिए, तो वो गलत है। शरीर को उसकी लत पड़ जाएगी। ड्रग्स आर एडिक्टिव, उसकी लत पड़ सकती है, और अगर आप उसे बार बार लेते हैं तो आपका शरीर उसका आदी हो जाएगा और आपको बार बार उसे लेने की इच्छा होने लगेगी। आपका शरीर उसके बगैर रह नहीं पाएगा और उसके लेने का मुख्य नुकसान आपके स्वास्थ्य को है, आपके शरीर को। You must have heard about AIDS. AIDS के बारे में आपने सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है Acquired Immune Deficiency Syndrome। तो ये एक्चुअली में अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये एक ऐसा वायरस है जो आपके शरीर में चला जाता है, तो ये आपके शरीर के इम्यून को घटा देता है। इम्यून यानी शरीर के लड़ने की, रोगों से क्षमता को घटा देता है। तो जब आपको सर्दी भी होगी तो क्या होगा, ऐसा शरीर जिसको एड्स हो रखा है, अगर उसे सर्दी भी होती है तो उसका शरीर उस सर्दी से भी नहीं लड़ सकता है। सामान्य बुखार होता है, उस बुखार से भी नहीं लड़ सकता है। इसलिए एड्स जो है वो एक कंडीशन है, न कि बीमारी है, ठीक है ना। तो ये
एक एचआईवी वायरस के कारण होता है और इसके कारण शरीर जो है बहुत तेजी से नष्ट होने लगता है, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां भी उसमें ठीक नहीं होती है। ये वायरस जो है एक बीमार इंसान से सामान्य इंसान में अगर सिरिंज यूज किया जाए उससे हो सकता है, या फिर एक इन्फेंट जो कि एक माँ जो कि एचआईवी इन्फेक्टेड हो और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे हो सकता है। इवन तक कि जो सेक्सुअल कांटेक्ट है उसके कारण भी एचआईवी इन्फेक्शन एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाने की संभावना होती है। तो ये हमारे चैप्टर को एंड करता है। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी तरह का कोई भी परेशानी होता है तो आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन केस जो वीडियो में कोई परेशानी हो रही है तो उस वीडियो के रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस को व्हाट्सएप में रेज कर सकते हैं, या फिर आप हमको फोन से भी फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल, दिस एंड्स द चैप्टर।